السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ. جی میرا جی جی تھینک یو. میں بریلوی تھا، اب میں الحمدللہ مسلمان ہوں. اوکے ٹھیک ہے. میرا شکوہ ہے کہ ایک منٹ بھائی، مسلمان ہوتے ہیں. اور اب مسلمان ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ جتنے بریلوی ہیں سارے کے سارے مشرک یا کافر ہیں، اور مطلب اس طرح کی بات نہیں بولنا مشرک ہیں سارے کے مراد نہیں ہے. میں اپنی بات کروں گا، میں اپنی بات کروں گا، بٹ میں مشرک تھا. ایسا لگے، میں پوری بات سن لیجیے آپ. ایسا لفظ نہ بولیے جس سے ایسا لگے، ہے نا. اس میں سے کچھ مشرک ہو سکتے ہیں یا بہت سے ہو سکتے ہیں، بہت سے نہیں ہوں گے. تو ہم ایسا لفظ نہ بولیں جس سے کسی مسلمان کو بحیثیت جماعت ہم مشرک کہیں. ہاں شرک میں ہو سکتا ہے یا بہت سارے لوگ میں مشرک. سر جی مجھے ایک بریلوی بتا دو جو ہاں سراج بھائی بولیے، جی بتائیے. جی میں یہی تو میں گلہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک آپ حق پر، دوسرا آپ لوگوں کی جماعت نے گستاخی کا سرٹیفکیٹ اپنے اوپر لگوا لیا. اب لوگ ہم کو بھی گستاخ کہتے ہیں. اب ہم جو صحیح بنتے ہیں. میں نے کسی اہل حدیث سے نہیں ملا، کسی مولوی سے نہیں ملا. میں نے صرف قرآن کو پڑھا، قرآن کے مطابق عقیدہ اپنا بنایا. انہوں نے کہا تم تو اہل حدیث ہو گئے ہو، تم گستاخ ہو گئے ہو. دیکھو وہ بات ہم بعد میں کریں گے. ابھی فی الحال پہلے مجھے یہ بات بتاؤ کہ اس میں جو بات آپ سے کہی گئی اس میں کیا غلط لگ رہا ہے. ابھی آپ نے بولے نا ہم لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں، تو کیا غلط کر رہے ہیں آپ بتائیں گے ہم لوگوں کو؟ ہم لوگ جو مانگتے ہیں حضور السلام سے یا غوث پاک سے یا کسی اور پیر سے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل جو غلط قرآن ہے کے خلاف. ہاں تو تو جو یہ لوگ قرآن مانگتے ہیں وہ سب کافر ہیں کیا؟ مشرک ہیں. تو مشرک کافر ہوتا ہے؟ ہر مشرک کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے بات آپ سنیے. بھائی جو بھی کلمہ گو میں ہے، تو نہیں ڈرتا. پوری بات سن لیجیے، پوری بات سن لیجیے. جیسے قرآن حدیث میں شرک کے بارے میں بتایا ہے، جیسے قرآن حدیث میں وسیلہ کے بارے میں بتایا ہے، کس سے مانگنا چاہیے کس سے نہیں مانگنا چاہیے، جیسے اس کے بارے میں بتایا ہے، ویسے قرآن حدیث میں اصول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کب کس کو مشرک کہیں گے، کب کافر کہیں گے. دیکھیے ہم کسی کے بالکل عمل آپ کی کو بات صحیح ہے. میں تو بہت مجھے جس طرح، پوری بات تو سن نہیں رہے ہیں آپ. جس طریقے سے یہ شیخ شعبان معذرت چاہوں گا، سن رہا ہوں. کچھ مائک ایڈجسٹ کریے. مائک ابھی تک اچھا چل رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر سے پرابلم آ گیا. چلو میں اچھا ٹھیک. اچھا تھوڑی دیر شیخ، کیونکہ آواز آپ کی بہت ڈسٹرب، آج ڈسٹربنس سے ڈسٹرب ہوئے. جی بولیے. چلو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. بھائی صاحب شرک اور شاید کفر کا مسئلہ لا رہے ہیں. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی وہ مطلب جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ شرک نہیں کر رہے ہیں، کفر نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہر شرک کرنے والے کو، ہر کفر کرنے والے کو یہ کافر کا ٹائٹل دینا آسان نہیں ہے. یعنی ہم یہ مانتے ہیں جو کام کر رہے ہیں نا، جیسے کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم صاحب بولتے ہیں شرکیہ عمل ہے، کفریہ ہے، شرکیہ ہے. لیکن کیا ہے، تکفیر کرنا ضروری نہیں ہے، اور سب کا کام نہیں، اس سے تکفیر نہیں کرنا چاہیے. بولنا چاہیے بھئی شرک والا کام ہے، یہ کفر والا کام ہے، لیکن تکفیر کا شوق نہیں پالنا چاہیے. آپ اختلاف کیجئے نا، آپ یہ بھی کہیے کہ تمہارا کام کفریہ ہے، آپ یہ بھی کہیے کہ شرکیہ ہے، لیکن یہ شوق نہیں پالنا چاہیے عام آدمی کو کہ وہ کسی کو کافر بولے، کافر مشرک بولتا ہے. اس کی ضرورت. آپ ایک عمل کو بتائیں کہ بھئی ایک منٹ سنیے. پہلے میں آپ کی اس بات پہلے میں سنیں ایک منٹ، صرف ایک منٹ مجھے دے دیں. پہلے آپ کی میں یہ بات مانتا تھا، میں پہلے یہی بات کرتا تھا، میں آپ کو مشرک نہیں کہتا، لیکن آپ کے کام مشرک والے ہیں. لیکن تھوڑی دیر میں سمجھ لگی یار ہم کس کو کب ہم ان کو مشرک کہیں گے تو ان کو بھی سمجھ لگے گی بھی ہم مشرک ہیں. ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کام مشرک والے ہیں. دیکھیے مسئلہ کیا یہ ہے سمجھ نہیں ان کا کیا قصور تھا پھر جنہوں نے ڈائریکٹ مشرک کا کام کیا؟ ان کا کیا، وہ کیا خدا کے بندے نہیں ہیں؟ وہ خدا کی مخلوق نہیں ہے جن کو ہم مشرک کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہندو ہو گئے یا کفار مکہ تھے، مشرک تھے، ان کو ہم کیوں کہتے ہیں وہ خدا کے بندے نہیں ہیں؟ آپ کہہ دو کہ وہ بھی مشرک نہیں تھے، کہہ دو ہم ان کو مشرک نہیں کہتے لیکن کام ان کے مشرکانہ تھے، کہو. دیکھیے سنیے نا، آپ سن نہیں رہے نا. میں تو یہ آگے کیا بات ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی آپ کی بات.
सिराज भाई आप सवाल पूछिए ना, अभी जवाब सुनिए जी। वो भी तो खुदा के बंदे हैं, वो भी दीन पर थे, हज़रत इब्राहीम के दीन पर थे, लेकिन दीन बदल गया था। सुने दीन बदल दिया था उन्होंने। आप उनको तो मुशरिक कहते हैं, अब इन्होंने जो दीन बदल दिया, आप इनको मुशरिक नहीं कहना चाहते। भाई सही बात है, इतना आसान सवाल है। अब मैंने आपको म्यूट किया है, जरा जवाब सुन लीजिए, फिर से अनम्यूट करूंगा। जी बोलिए। देखिए भाई साहब, मैं वही बताने जा रहा था कि ये जो कुफार है, मुशरिकीन है, वो कलमा नहीं पढ़ते, वो अपने आप को मुसलमान होने का दावा नहीं करते। ये बहुत बड़ा फर्क है। यानी खुद को ये नहीं कहते कि हम मुस्लिम हैं, खुद को ये नहीं कहते कि हम वो तो साफ कहते हैं ना कि कफर ना, हमने कुफ्र किया, हम नहीं मानते। तो जो आदमी डंके की चोट पे कहता है कि हम अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, उसे मुशरिक और काफिर क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन जो दावा कर लेना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे मुनाफिकीन को मुसलमान मानते थे, हालांकि जानते थे कि मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमान बोलते थे, मुसलमान जैसा तामुल करते थे उनके साथ, उनकी तकफीर नहीं करते थे। यानी उनको तकफीर, यानी उनको एकदम मुसलमान नहीं, यानी अल्लाह के रसूल जानते थे ये मुनाफिकीन है, लेकिन आप सल्लल्लाहु मुसलमानों की सफ में रखते थे, वो नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, बताइए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं भगाया, जानते हुए कि ये मुसलमान जो है ये मुनाफिक हैं, तो उनकी तकफीर नहीं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि फर्क क्या है, जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि या अय्युहल काफिरून जगह जगह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कुफार कहा, मुनाफिकीन को कुफार नहीं कहा, ऐसा, हालांकि वो भी काफिर है। फर्क ये है कि मुनाफिकीन दावा कर रहे थे कि हम मुस्लिम हैं, वो दावा कर रहे थे, तो उनके दावे की वजह से और मसलहत की वजह से उनको काफिर नहीं कहा गया। तो हमें दोनों में फर्क करना होगा, एक आदमी जो कलमा पढ़ रहा है और एक आदमी जो कलमा नहीं पढ़ रहा है। तो जो कलमा नहीं पढ़ रहा है वो तो खुद अपने आप को इनकार कर रहा है ना, तो उसको काफिर मुशरिक करने में कोई मसला नहीं। लेकिन एक आदमी कहता है कलमा पढ़ रहा है, तो कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को मानता हूँ, फिर भी अगर वो कुफ्र और शिर्क वाला काम करता है, तो वो करने के बावजूद भी ये नहीं बोलता कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, ये नहीं बोलता कि मैं रसूल को नहीं मानता। तो हो सकता है वो कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है गलतफहमी का शिकार हो सकता है जाहिल हो, बहुत सारी वजह हो सकती है कि उसको थोड़ा बहुत मिल सकता है। इसलिए हमें एहतियात का रास्ता अपनाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो काफिर नहीं हो सकता है, वो काफिर हो सकता है पक्का मुशरिक हो सकता है दायमी जहन्नम हो, हम उसका इनकार नहीं करते। लेकिन ये फैसला हम क्यों करें, ये शौक हम क्यों पालें? हम ये कहते हैं ना कि ये काम कुफरिया है, ये काम शिरकिया है, लेकिन टाइटल देके हमको क्या मिलेगा? तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है सिराज भाई, आपको उम्मीद करता हूँ इस बात समझ में आई होगी। कभी जरूरत पड़ती है तो हम टाइटल देते हैं, जैसे कादियानी है, अब उलमा को जरूरत महसूस हुई, नबूवत का दावा करता है, उसको टाइटल दिया काफिर, उलमा ने बाकायदा कुफ्र का फतवा लगाया, अब सब लोग काफिर, लेकिन एक आदमी करे चोरी और दावा ये करेगा मैं चोर नहीं हूँ, आप उसको चोर नहीं कहेंगे? शेख मैं जवाब देना, जज उसको चोर नहीं मानेगा। एक आदमी चोरी करे और कहे मैं चोर नहीं हूँ, आप उसको चोर नहीं कहेंगे, ठीक है, जज उसको चोर नहीं मानेगा। सिराज भाई मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, आपके सवाल का जवाब है मौजूद। आप ये हदीस देखिए, ये हदीस में आता है। पहले मुझे आप एक सवाल का जवाब बताइए कि कोई शख्स कहे कि कोई पेड़ में पावर है कि उस पे तलवार लटकाएंगे तो तलवार में ऐसा पावर आएगा कि जीत लेंगे। तलवार यानी कि पेड़ पे लटकाने से तलवार में पावर आता है। अगर कोई किसी का ये अकीदा है तो ये अकीदा सही है गलत है? पेड़ जैसे तलवार में मोड़ आता है, ये गलत है। गलत, शिर्क है कि नहीं है? कोई पेड़ में पावर है, पेड़ पे लटकाने से कुछ होता है कि नहीं शिर्क? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी हदीस आपके सामने, इसमें आपके सवाल का जवाब मौजूद है, आप जरा ध्यान से पढ़ो इस हदीस को। हदीस में आता है, साहबी रसूल बताते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जब हुनैन की जंग के लिए जा रहे थे तो एक पेड़ दरमियान में गुजरा जिसका नाम था ज़ात अनवात। अब इस पेड़ पर जो मुश्रिकीन मक्का अपनी तलवारें लटकाते थे, उनका यह अकीदा था कि ये पेड़ पे लटका दो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो जब उस पेड़ के पास से गुजरे तो बाज लोग जो नए नए इस्लाम कबूल किए थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअल लना ज़ात अनवात कमा लहुम ज़ात अनवात, कि हमारे लिए भी ज़ात अनवात का पेड़ बनाओ, जैसे उनके पास है ज़ात अनवात का पेड़, ऐसे हमारे लिए भी एक पेड़ मुकर्रर करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने तो ऐसे कहा है जैसे मूसा से बनी इसराइल ने कहा कि हमारे लिए भी माबूद, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहतुन, कि जैसा उनके पास माबूद है ऐसे हमारे लिए भी माबूद बना दो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह की, करेक्ट किया, लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम सब काफिर हो गए, अब तुम्हें कलमा फिर से पढ़ना पड़ेगा, अब तुम्हारी जो निकाह टूट गए, तुम्हें निकाह कराना होगा, तुमने बैत लिए थे मक्का में वो बैत फिर से लेना होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात और है, ये तो समझाया जा रहा है उनको, अगर वो फिर करते फिर ना। सिराज भाई बस मैं मुकम्मल कर लूं, 1 मिनट और लूंगा फिर आपको मैं मौका देता हूं। हाँ, तो यहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुसलमानों में ही शुमार रखा,
लेकिन उनकी इस्लाह की। अब आज हमें ऐसे लोग दिखते हैं जो शिरकिया बात बोल रहे हैं, शिरकिया बात बोल रहे हैं, वो लोग शिरकिया काम कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि कलमा क्या है तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप आगे बढ़ के किसी दरगाह के बाहर भी खड़े होकर पूछो कि भाई जो ये दरगाह में है आप उनकी इबादत करते हो क्या, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, इबादत इनकी नहीं करते। इबादत किसकी करते हो? इबादत तो सिर्फ अल्लाह की करते हैं। लेकिन हकीकत में वो इबादत के अमाल अल्लाह के अलावा औरों के लिए कर रहे हैं। अब उनके कहने और करने में तजाद है, कह रहे कुछ, कर रहे कुछ। अब ऐसा ही हुआ था यहां पर कि ये लोग थे जो मुसलमान थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे और शिरकिया बात बोल रहे हैं, कह रहे शिरकिया बात, साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोल रहे हैं, तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो क्या चीज पे जाएंगे? कहने पे जाएंगे, करने पे जाएंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम को बरकरार रखते हुए उन्हें मुसलमानों में शुमार रखा और उनकी इस्लाह की। यही सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आज जब हमारे भाई कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, किबला रुख है, सेम किबला है हमारा, सेम कुरान है, सेम नबी को मानते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि क्या तुम उनकी इबादत करते हो, कहते नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत में कर रहे हैं। कहने और करने में फर्क है। तो हम क्या करेंगे? हम वही तरीके पे चलेंगे जो सहाबा ने नहीं किया, ये करते हैं। सहाबा ने नहीं किया, ये करते हैं। क्या बात करते हैं सर? वो तो मान गए हुजूर की बात, उन्होंने नहीं किया, ये करते हैं। तो बात को फिर भी करते हैं। क्या नहीं किया? साहबे कराम को वो जो कह रहे थे आप हमारे लिए पेड़ बना दें, वो जब हजूर ने मना किया तो वो रुक गए। सैयद भाई दो बात मुझे रखने दीजिए इनके सामने। जी हाँ रखिए। पहली बात ये ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, वो समझ गए। आप जिनको काफिर कह रहे हैं, आप समझा लेंगे उनको, आपने हुज्जत कायम कर दी। हो सकता है कि कमी आपके अंदर हो, आप सही से समझा ना पा रहे हो। हाँ? दूसरी बात यह है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपने अभी शायद ये कहा ना कि आप शायद पहले क्या थे, जब इन्होंने शायद कन्वर्टेड है कुछ पहले। हाँ, ऐसे कुछ कहा जी। तो भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पहले आप भी ऐसे शिर्क कुफ्र करते थे जो अभी छोड़ दिया आप? हेलो, बस मैं ये कहूंगा, उल्टा चोर को तो आपको डांटे, सही हम और गुस्ताख भी हम। आपको पता है मेरे साथ लड़ाई हुई, मेरे साथ लड़ाई हुई, भाई ने मुझे मारा। पूछ रहा हूँ कि आपने छोड़ दिया पहले सब करते थे? अरे सिराज भाई जवाब दीजिए, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। जी बोलिए। आप सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आपने ये सब छोड़ दिया, पहले करते थे? आपने अभी कहा ना शुरू में कुछ, मैंने ऐसा सुना शायद। नहीं, आपकी बात जो है ना वो कट रही है, इसलिए मैं कट नहीं रही, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा कि आपने ऐसे कहा था उन्होंने, रिकॉर्डिंग है पूरी यूट्यूब पर। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब भी तौबा कर चुके हैं? आपके वालिद साहब भी तौबा कर चुके हैं या वो भी उसी हालत पे हैं? आपके अब्बा? बात आपकी कट रही है, बस मैं यही कहूंगा आप काम अच्छा कर रहे हैं, बस थैंक यू। नहीं आप ये बताइए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके अब्बा आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अभी जो सिराज भाई का इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, आप जो पॉइंट बता रहे थे वो बता दीजिए ताकि सब लोगों को फायदा हो जाए। मैं बता देता हूँ। मैं असल में इनसे पूछना चाहता था कि आपके अब्बा अभी भी उसी शिर्क कुफ्र पे बाकी है या नहीं बाकी? ये जितने लोग भी ऐसे तकफीरी जहन के होते हैं ना, सबको काफिर बोलते हैं। जब उनको प्रॉपर्टी लेनी होती है, जायदाद लेनी होती है ना, तो उसमें जाके अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं कि हम अपने अब्बा की प्रॉपर्टी लेंगे। तो अगर भाई आप किसी को काफिर बोल रहे हो, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना अपने बाप की जनाजा पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन विरासत में हिस्सा ले लेते हैं। भैया जब आप अपने अब्बा को काफिर मान रहे हो तो हदीस है ना कि ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिमा, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता है, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता है। इसलिए मैं इनसे पूछ रहा था कि आपके अब्बा मतलब छोड़ दिए कि हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अब्बा को काफिर बोलते हैं। हत्ता कि बहुत अफसोस होता है कि कितने लोगों के बारे में मैं जानता हूँ जो अपने अब्बा का जनाजा नहीं पढ़े, इतनी सख्ती है। लेकिन विरासत ले लिया। ये नहीं कहा कि मैं अपना अब्बा का माल नहीं लूंगा क्योंकि वो काफिर थे इसलिए जनाजा नहीं पढ़ा। लेकिन काफिर थे तो आपको माल भी नहीं लेना चाहिए ना। आपके जो दूसरे बेटे, उनके जो दूसरे बेटे उनको छोड़ देना चाहिए, आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन आप माल लेना होगा तो आपके अब्बा मुसलमान हो गए और बाकी कुफ्र का, बाकी नमाज पढ़ना हुआ तो काफिर बना दिया। तो ये क्या बात भाई, कभी अपने अब्बा को कभी काफिर बना दो, कभी मुसलमान बना दो। तो वाकई अगर आपका जो अकीदा है, आपकी जो सोच है, उसमें अगर पुख्तगी है तो आप क्या करो, आप विरासत में हिस्सा भी मत लो, जायदाद में हिस्सा मत लो। यही नहीं बल्कि काफिर का ज़बिया भी हलाल नहीं है ना, ज़बिया भी हलाल नहीं है। अब जाके वो चिकन खरीद के लाते हो, ये नहीं देखते कुछ किसकी दुकान है। हाँ, एक बरेलवी बेच रहा होता है, लेके आ जाते हो। हाँ,
क्यों भाई गोश्त खरीद के ला के खाते हो, खाना हुआ तो काफिर गैर काफिर का कोई मसला नहीं है, बरेलवी की दुकान से चिकन लेकर आओगे, हाँ अपने अब्बा बरेलवी हो तो उनकी माल में हिस्सा ले लोगे, और बाकी दूसरे मामलात में आप काफिर काफिर कहते चलोगे, तो ये ठीक नहीं है ना। तो ऐसे कुफ्र के गोले नहीं दागना चाहिए। आप कह सकते हो कि भाई ये कुफरिया काम है, ये शिरकिया काम है, लेकिन हुज्जत कायम किए बगैर किसी को काफिर नहीं कहा जाता है, और हुज्जत कायम करना हर आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये बड़े बड़े उलमा की बात है, उनका काम है। तो एक आम आदमी का ये काम ही नहीं है कि वो ये दावा करे कि मैं हुज्जत कायम कर चुका हूं, अब कुफ्र का फतवा लगा दो। ये एक बड़ा फतवा है, किसी को काफिर कहना एक बड़ा फतवा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो काफिर नहीं है, हो सकता है काफिर हो, लेकिन आपके लिए बोलना जरूरी है कि वो काफिर है। हो सकता है कि हमेशा हमें जहन्नम में जाए, लेकिन क्या आप उसको काफिर नहीं बोलेंगे तो जन्नत में चला जाएगा? मुनाफिकीन को अल्लाह के नबी रसूल ने काफिर नहीं बोला तो क्या जन्नत में चले जाएंगे वो? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। तो उनको अगर वो वाकई काफिर हैं, उनको समझ में आ गया है, हुज्जत कायम हो चुकी है और हमने उनको काफिर नहीं कहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो बच जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, लेकिन अगर देखिए, अगर अल्लाह ताला के यहाँ वो माजूर हैं, किसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी गलतियों को माफ कर दिया है, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से, जहालत की वजह से हो सकता है कि अल्लाह ताला दरगुजर कर दे। अगर ऐसा हुआ और आपने कुफ्र के गोले बरसा दिए तो पकड़ जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। आप आलिम नहीं है, आप आलिम नहीं तो वो काम आपने कैसे कर दिया? यानी एक बड़े इस्तिहाद की जरूरत है। आपने कुफ्र का फतवा कैसे लगा दिया? लेकिन अगर आप कुफ्र का फतवा नहीं लगाते, आप ये कहते हैं काम कुफरिया है, शिरकिया है, तो आप सेव है। यानी अगर वो काफिर रहा तो भी कोई नुकसान नहीं है, और काफिर नहीं रहा तो भी आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसे धड़ाधड़ किसी को काफिर बोलना, ये तरीका सही नहीं है। हाँ, अगर उलमा की जमात ने किसी की तकफीर कर दी है तो आप भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक बड़े बड़े उलमा, किबार उलमा किसी को काफिर नहीं कह रहे हैं, तब तक जो है किसी का नाम लेके आम आदमी को काफिर नहीं कहना चाहिए। जी, ये देखिए शेख, ये एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का, यूपी में एक फतवा दे दिया किसी ने और 200 लोगों की शादियां कराई गई। क्या हुआ था कि एक यानी देवबंदी आलिम था, उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ाई और पीछे 200 बरेलियों ने नमाज पढ़ ली। तो वो 200 लोगों के बारे में फतवा लगाया गया कि वो सबका निकाह टूट गया। अब जब निकाह टूट गया तो 200 लोगों को फिर से निकाह करना पड़ा। हाँ, फिर से निकाह करना पड़ा, और उनमें से एक, हाँ, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, हाँ, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, उनको करना पड़ा। ऐसे ऐसे मामलात तकफीरी लोगों के। मैं फिर कहता हूँ जैद भाई, ये लोग ये सब कुछ करते हैं लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं छोड़ते। अक्सर देखने में आया है, मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं जाता हकीकत में। विरासत के सवाल के जवाब देता हूँ मैं। विरासत मेरा एक खास दिलचस्प फन है, उससे मैं जुड़ा हूँ। 10-15 साल से मैं ऐसे केसेस देखता हूँ, लेकिन एक भी बंदा नहीं आया ये कहते हुए कि चूंकि मेरे अब्बा बरेलवी थे, कब्र पूज रहे थे, इसलिए मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, बताओ कैसे बटेगा। ऐसा कोई नहीं आता। तो ये गलत है ना भाई। आपको काफिर कहने का शौक है तो आप हट जाइए ना विरासत से, लेकिन नहीं हटेंगे आप।